الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ نور فنا کی چیردستی سے نعرے تکبیر حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، ماشاءاللہ۔ بڑا پیارا مطالعہ جوانوں کے حوالے سے لا رہا ہوں۔ آپ کا ایک تہائی جلسہ نکل چکا، 2 تہائی جلسہ باقی ہے، تھوڑا سا ساتھ دیں گے، ایک جھٹکے میں یہ ہاتھی بھی اور دم کے ساتھ پاس ہو جائے گا، ہاتھ اڑا دیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، آپ نے حوصلہ دیا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا۔ اور راز سنیے، آدمی کو گھر میں کب سکون ملتا ہے، کب بے چین ہوتا ہے، اس راز کو سنیے گا، بالکل لائن بلائن سنا رہا ہوں، عمر بھر کام آئے گا۔ اللہ میرے مطالعے کو تازہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، دھیان سے سنیے گا۔ آدمی کو سکون کب ملتا ہے؟ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو آدمی کو سکون ملتا ہے۔ جب آدمی اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سکون ملتا ہے کہ میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہے، میرا کھانا اس کے کھانے سے اچھا ہے، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے، سکون ملتا ہے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے کے بعد سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے، راز بتا رہا ہوں۔ آپ یہ سوچیے، اللہ ہم کو عزت سے روزی دے رہا ہے، اس کو بار بار سوچیے، تکیے پر سر رہے، اس کو بس سوچتے رہیے تو آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کو سکون ملے گا۔ سکون کیسے ملے گا؟ آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے ثابت کر سکے کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا، امبانی ہو یا اڈانی ہو یا الو کا پٹا ہو یا بھینس کا انڈا ہو، کیلے کا چھلکا ہو، کوئی بھی ہو، یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے۔ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، اس لیے آپ کو سکون ملے گا۔ چوتھی بات بتا رہا ہوں، دولت ہے مگر بیمار پڑا ہوا ہے، دولت نہیں ہے مگر تندرست ہے۔ بہتر کون ہے؟ دولت تو ہے بیمار پڑا ہوا ہے، دولت نہیں ہے لیکن تندرست ہے، اس کو راحت ملی ہے، دولت نہیں ملی ہے، اس کو دولت ملی ہے، راحت نہیں ملی ہے۔ اس نواب سے بڑھ کر کے وہ مزدور ہے جس کو دولت تو نہیں ہے لیکن راحت ضرور ملی ہوئی ہے۔ 3 چیز اگر آپ کو مل جائے تو آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا آپ کو مل گئی، وہ کیا چیز ہے؟ آپ کو سر چھپانے کے لیے گھر مل گیا، دشمن کا خوف نہیں ہے، ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا، پوری دنیا آپ کو مل گئی، آپ غنی ہیں، غریب نہیں ہیں۔ دل کو مضبوط کیجئے، اللہ خوش ہوگا۔ آدمی پریشان کیسے ہوتا، راز بتا رہا ہوں، 4 مثال دے رہا ہوں، 4 سیکنڈ میں بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جب آدمی اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اس کو لالچ آتا ہے، اس کے بعد حسد ہوتا ہے، اس کے بعد دشمنی کرتا ہے، اس کے بعد حلال اور حرام کی پرواہی نہیں کرتا۔ آپ مکان بناتے ہیں، بنائیے، شوق سے بنائیے، لیکن آپ مکان بنانے کے بعد بھی پریشان رہیں گے۔ کیسے؟ ہم میں راز بتا رہا ہوں۔ مکان بنائے ہیں تاکہ جاڑے سے بچ جائیں، گرمی سے بچ جائیں، بہت اچھا۔ مکان بنائیں تاکہ رات کٹ جائے، بہت اچھا۔ مکان بنائیں تاکہ دل خوش ہو جائے، بہت اچھا، یہاں سکون ملے گا۔ لیکن جیسے آپ کے دل میں خیال آیا کہ مکان بنا رہا ہوں، دنیا میری تعریف کرے، اس دن سے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ خیال کبھی دل میں مت رکھیے گا کہ گھر بنا رہا ہوں دوسرا تعریف کرے، اسی دن سے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ سکون کیسے چلا جاتا ہے، راز کی بات بتا رہا ہوں۔ میں اتنا کما لوں، اتنا کما لوں، کمانے پر کسی کا اختیار نہیں، ہاں خرچ کرنے پر اختیار ہے۔ زیادہ کماؤں گا زیادہ خرچ کروں گا، کم کماؤں گا کم خرچ کروں گا، آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن اتنا کما لوں اتنا کما لوں، آپ کا سکون چلا جائے۔ ایک راز بتا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں تکیہ پر سر ہوتا ہے، اسٹیج پہ بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی پیشانی کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کاش کہ مجھے بھی پیسہ ملتا، میں بے فکر ہو جاتا۔ دنیا میں کوئی بھی پیسہ لے کر کے بے فکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ سونار ہو سکتا تھا جس کے پاس سونا ہے۔ ایک آدمی گیا، تم تو بے فکر آدمی کا، میں بے فکر نہیں ہوں، میری بیوی مر رہی تھی، میں گولی کھا کر کے نامرد ہو گیا تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا، لیکن وہ دوبارہ بچ گئی، میں نامرد رہا، اور وہ میری موجودگی میں دوسرے سے زنا کراتی ہے، میں گھٹ گھٹ کر کے مر رہا ہوں، میں بے فکر نہیں ہوں، میں تو ٹینشن میں جی رہا ہوں۔ اس لیے جھوپڑی میں رکھ کر کے محل کا خواب دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیا رے دیا
दयारे इश्क में, दयारे इश्क, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। अगर खुदा दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक बड़ा प्यारा मुताला लेकर के आ रहा हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ ला रहा हूँ कि आप लोग थक भी गए हैं, लेकिन आपका जलसा किनारे लग भी रहा है। मुश्किल से 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा आपका निकल रहा है। आदमी गुनाह कैसे करता है, गुनाह कैसे छूटता है, गुनाह है क्या और गुनाह पर सज़ा क्या मिलती है। 4 लाइन का नमूना है आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। गुनाह आदमी कैसे करता है, शैतान उससे गुनाह कराता रहता है। जब वो छोड़ने के लिए कोशिश करता है तो शैतान कहता है जब इतना सारा गुनाह कर ही लिया, एक गुनाह करने में क्या होता है। इस तरह से आदमी गुनाह करता ही चला जाता है। जब वो टीवी देखना चाहता है, मोबाइल देखना, फिल्म देखना चाहता है तो रुकता है कि यार गुनाह होगा, तो शैतान कहता सारी दुनिया तो मोबाइल देख रही है, फिल्म देख रही है, मोबाइल देखने से क्या होता है। यहाँ पर आदमी गुनाह करने लगता है। तीसरी जगह गुनाह कहाँ करता है, फिल्म देखा, तमाशा देखा। अब शैतान कहता है तजर्बा करके देखो, उसमें चोरी डकैती देखी थी, चोरी डकैती करके देखो। आदमी गुनहगार हो जाता है। गुनाह कैसे छूटता, बिल्कुल आसान है, मैं बता रहा हूँ। 3 रास्ते से गुनाह छूट जाता है। आप ये सोचिए मैं गुनाह करूंगा, खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपका गुनाह छूट जाएगा। आप ये सोचिए गुनाह करूंगा, खुदा को गुनाह का मुंह दिखाना पड़ेगा, आपका गुनाह छूट जाएगा। आप ये सोचिए कि मेरा बाप खड़ा हो, मैं उससे गुनाह नहीं होगा, मेरी माँ खड़ी हो, मुझसे गुनाह नहीं होगा। जब मैं गुनाह करता हूँ, मेरा खुदा खड़ा होता है, तो कैसे गुनाह हो सकता है, आपका गुनाह छूट जाएगा। गुनाह है क्या चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, जलसा आपका निकल रहा है। गुनाह जब छोटा होता उसकी मिसाल चिंगारी की है, गुनाह जब बड़ा होता उसकी मिसाल अंगारे की है। एक चिंगारी इतने बड़े घर को राख में तब्दील कर देती है। सोचिए कि छोटा गुनाह आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा। गुनाह की मिसाल क्या है, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। गुनाह की मिसाल क्या है, खुजली है। खुजलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन खाल भी कट जाती है, खून भी निकलने लगता है, लहर पैदा होती है, नींद हराम हो जाती है। गुनाह के बाद आदमी की जिंदगी जहन्नम बन जाया करती है। गुनाह की पर सजा क्या मिलेगी, सबसे छोटी सजा। अगर आप बड़ा से बड़ा गुनाह करते हैं, बड़ा से बड़ा गुनाह करते हैं, जिंदगी भर गुनाह करते हैं, उस पर छोटी सी छोटी सजा ये मिलेगी, 2 चिंगारी आपके पैर के नीचे रख दी जाएगी। 2 चिंगारी, जब वो 2 चिंगारी पैर के नीचे रख दी जाएगी तो सर इस तरह खोलेगा जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है, तो आदमी ये समझेगा कि सबसे बड़ी सजा मुझको मिल रही है। गौर कीजिए, उस सजा को पाने से पहले आज मौका है। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए 2 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मजलिस से एक आदमी हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, रोता कम है हंसता ज़्यादा है। हंसने पर हंसता ही है, रोने का नाम ही नहीं ले रहा है। न तो हकीकत में रो रहा है, न तो मजाक के तौर पर रो रहा है, रोता ही नहीं है, सिर्फ हंस रहा है। तो उस्ताद ने कहा कि क्यों हंसते हो, पुलसिरात मालूम नहीं है? पुलसिरात पर चढ़ना तो मालूम है, उतरना मालूम नहीं है, तो हंसता क्यों है? अब हंसी खत्म होगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुर्गी दिया है, चाकू दिया है, उस्ताद ने शागिर्द से कहा है कि ऐसी जगह ज़बह करके लाओ जहां कोई ना देखे। शागिर्द वापिस आ गया, हुजूर मैं ज़बह नहीं कर सकता। कहा कि वो क्यों? कहा कि कोई ऐसी जगह दुनिया में है ही नहीं जहां खुदा ना हो, इसलिए मैं इस मुर्गी को ज़बह नहीं कर सकता। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। इंशाअल्लाह गुनाह किया, बड़ा से बड़ा पाप आपका छूट जाएगा। अल्लाह आपके तौबे को कबूल फरमाए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
मेरे करीम झुक के, मेरे करीम झुक के बड़ी आजिज़ी के साथ फैला रहा हूँ सामने, फैला रहा तेरे करम के सामने, फैला रहा हूँ हाथ। आमादा हो कभी ना तबीयत गुनाह पर, सीधा चलो मैं रुश्दो हिदायत की राह पर। वो शौक देख के कौम के कुछ काम आ सकूं, हर दिल अजीज बन के बड़ा नाम पा सकूं। एक पैगाम आप गौर से सुनिएगा, और आज के बाद जो रस्म और रिवाज हमारे समाज में तेज़ी के साथ फैल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका निकल गया, सिर्फ 2 पैगाम आपको देंगे, जलसा आपका ख़त्म हो जाएगा, मेरे हिस्से का जलसा ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आलिम उलमा से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, 1 मिनट में आलिम के सर पर पगड़ी रखते हैं, 1 मिनट पर पगड़ी उछाल देते हैं, जूते में पगड़ी को लेकर के आ जाते हैं। लोगों का हाल क्या हुआ है? आलिम के बारे में बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत क्या है कि आलिम जैसा भी काम करे मैं वही काम करूंगा, चाहे आलिम गलत करे तो मैं गलत करूंगा, ये भी गलत है। और अगर आलिम से गलती हो गई तो जिंदगी भर के लिए ताल्लुक तोड़ लेते हैं। क्या कहते हैं आजकल के सब मौलवी ऐसे ही होते हैं, ये भी गलत है। भाई आलिम से गलती नहीं हो सकती, आलिम से भी गलती होती है। गलती होने का मतलब है कि आप माफ़ कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आलिम को लोग 4 जगह पकड़ते हैं। जब वो खानका में होता है तो क्या कहते हैं, तो दुनिया से बेखबर है। जब वो मदरसे में होता है तो क्या कहते हैं, मदरसा से निकल करके कहाँ जाएगा, किस बाप के यहाँ जाएगा। और जब वो सियासत में आता है तो वहाँ पकड़ते हैं, तो क्या कहते हैं कि मौलवी को सियासत से क्या मतलब। और जब वो गरीब था, मालदार हो जाता तो वहाँ पकड़ते हैं कि ये लाखपति कैसे बन गया, ज़रूर घोटाला किया होगा। मदरसे पर एतराज़ करते हैं, मदरसे पर क्या एतराज़ करते हैं, 1400 साल पुराना हो गया, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और उलमा पर एतराज़ करते हैं कि तो तनख्वाह लेकर के काम करते हैं, कहाँ से दीन का काम हो रहा है। और तलबा पढ़ने वाले मदरसा में जो तलबा पढ़ते हैं उन पर एतराज़ करते हैं कि ये पढ़ लिख करके कहाँ से खाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, किसी के साथ आप भला नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए। आपके ख़ानदान से अल्लाह इल्म को उठा लेगा और आपके बच्चों को इल्म से महरूम कर देगा। दुकानदार के पास जब पैसा लेकर के आते हैं तभी सौदा मिलता है, आलिम के पास जब मोहब्बत लेकर के आएंगे तभी ख़ानदान में इल्म होगा, वरना ख़ानदान इल्म से महरूम हो जाएगा। 2 मिसाल देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक नवाब साहब सामने हैं, आलिम सामने हैं। पूछा कि ओ नवाब आलिम साहब, आपने मुझे सलाम नहीं किया। मैं कौन हूँ पता नहीं है? कहा कि हाँ पता है, तुम्हारी इब्तिदा भी जानता हूँ, तुम्हारी इंतहा भी जानता हूँ, और तुम अभी क्या हो यह भी जानता हूँ। कहा क्या जानते हैं? कहा तुम्हारी इब्तिदा पानी के नुतफे से है, मनी के नुतफे से है, नापाक नुतफे से तुम पैदा हुए हो, कर रहे हो। तुम्हारा अंजाम ये होगा कि मरने के बाद सीधे कब्र में चले जाओगे, तुम्हारा ये अंजाम होगा। तुम्हारी ये हालत है कि 20 किलो तुम्हारे पेट में पखाना है। अगर अल्लाह पेट खोल दे तो एक आदमी भी यहाँ नहीं रुकेगा। अल्लाह को देखो, अल्लाह की कुदरत को देखो, गुरूर मत करो। फिरऔन का गुरूर अल्लाह ने खाक में मिला दिया, तुम्हारा भी मिला देगा। ध्यान दीजिएगा, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शौहर खाना खा रहा है, साइल आया, बीवी से कहा मैं तो खाना खा रहा हूँ, तुम भीख ले जा करके दे दो। बीवी गई खुशी खुशी, वहाँ से वापस रोती हुई आ रही है। शौहर ने पूछा कि भीख लेकर के तुम गई खुशी से, वहाँ से वापस हो रही हो तो रोती क्यों हो? कहा कि वो भीख मांगने वाला जो आया था वो मेरा पहला शौहर था। वो पहला शौहर था, भीख मांगने के लिए तुम्हारे यहाँ आया था, इसलिए तुम रो रही हो। किस्सा क्या है? तो कहा कि ये बड़ा मगरूर आदमी था। जब कोई साइल इसके दरवाजे पर आता था, जूते से खबर लेता था। उसकी आह लग गई, दौलत चली गई, मुझको तलाक दे दिया, बीवी भी चली गई। तो कहा कि याद करो वो साइल जिसको इसने जूता मारा था, वो साइल मैं ही था। अल्लाह ने देखो दौर को बदला, उसकी दौलत मुझे दे दी, उसकी औरत मुझे दे दी। इसलिए आगे आने वाले दौर को देखना है। आलिम पर उंगली उठाने वाले, आपका खानदान इल्म से महरूम हो जाएगा। आलिम की इज्जत करेंगे, इल्म की इज्जत होगी, इल्म की इज्जत की बरकत से आपके खानदान को अल्लाह माला माल कर देगा। इंशाल्लाह सबको माफ करेंगे, आलिम को माफ नहीं करेंगे। हाथ बढ़ाइए इंशाल्लाह।
कितना कितना गुदाज दौर था, कितना गुदाज दौर था मुगल कौम का ये हाल, कितना कितना कैसा गुदाज दिल था मुगल कौम का वो हाल। दिल्ली को अब भी याद है तैमूरियों का हाल, महरूमियों ने खींच ली उनके बदन से खाल, महरूमियों ने खींच ली उनके बदन से खाल। जीना था उनका मौत तो मरना भी था वबाल, बर्बाद हो के रह गए शाहाने नाम वे, रोते हैं उनके हाल पर दिल्ली के बामोदर। एक पैगाम बड़ा खूबसूरत है, जवानों के हवाले से है। मैं हाथ जोड़ करके जवानों से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए, जलसा कबूल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। जवान लोगों से कहता हूँ जायज़ कमाना है और अपने घर में जायज़ लोगों को कमा करके खिलाना है। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। इसका राज बता रहा हूँ। अमेरिका की तरक्की रुक गई, अमेरिका तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जबकि सुपर पावर था, सूदखोर था, सूद ने कहीं का नहीं रखा। आपने अगर सूद को हाथ लगाया आप भी कंगाल हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। याद रखिए, मैं सुना रहा हूं अल्लाह कैसे बंदे को रोजी देता है। आपका ईमान भी मजबूत होगा, आप मुसलमान हैं, दीन में भी अल्लाह आपको तरक्की देगा, दुनिया में भी तरक्की देगा। ध्यान से सुनिएगा। आप दुकान खोल करके बैठे, बारिश हो रही है, गाहक आ गया। ये गाहक किसने भेजा? बारिश में अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाली, तुम उसके पास जाओ। इसके दिल में बात डाली, बारिश हो रही है तो क्या, रोजी का मालिक अल्लाह है, तुम दुकान तो खोलो। इसके दिल में बात डाली, दुकान खोलो। उसके दिल में बात डाली, तुम दुकान पर जाओ। इसका काम सौदे से बन गया और उसका काम पैसे से बन गया। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ताला कैसे आपको जायज रोजी, हलाल रोजी खिलाता है। रात में आराम करने के लिए कहा, दिन में काम करने के लिए कहा। दिन में आप काम करते हैं, रात में आराम करते हैं। दिन में आप थके हुए होते हैं, रात में आराम हो जाता है। आराम करने के बाद फिर आप काम करने के लिए जाते हैं। ये निज़ाम किसने बनाया? अल्लाह ने। अगर उल्टा निज़ाम होता, कोई काम करता दिन में, कोई सोता, न उसका काम मुकम्मल होता, न ये सो पाता। अल्लाह ने गैबी निज़ाम बनाया कि सुबह काम करना है, रात में सुलाओ। सोने के बाद आपकी नींद में आपकी तकलीफ इस तरह उतरती है जैसे सांप के पेट से कचली उतर जाती है। बात याद रखिएगा, ध्यान से सुना रहा हूं। आपके पास मजबूर आदमी आता है, कहता मुझे कर्ज दो, तो आप कहते हैं कि मैं थोड़ा दे रहा हूं, ज्यादा लूंगा, सूद लूंगा। आप सूदी कर्ज देते हैं। याद रखिए, आज मजबूर है, आपके आगे हाथ फैला रहा है, आप इसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कल आप मजबूर होंगे, दुनिया आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगी। जब आपने कर्ज थोड़ा दिया है, अब ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, ये सूद है, और ये सूद आपने की जेब में आया, आपको तबाह कर देगा। दूसरी बात याद रखिए, आप अगर कमाना ही चाहते हैं, 3 रास्ता बता रहा हूं कमाने के लिए। सूद की जरूरत नहीं है, सूद से ज्यादा कमाएंगे आप। कर्ज दीजिए, मैं रास्ता बता रहा हूं कैसे आप कमाएंगे। 3 रास्ते से आप कमाएंगे। किसी को कर्ज पैसा दीजिए और कहिए नफा होगा तो नफा में हिस्सा होगा, नुकसान होगा तो नुकसान में हिस्सा होगा। आप कमा भी लेंगे और सूद से बढ़ करके आपको अल्लाह जायज से तरक्की अता फरमाए। दूसरा तरीका है, आप किसी को पैसा दीजिए, उससे पूछिए कि तुम कारोबार करना चाहते हो? कहता हाँ। कहा तुम मशीन तुमको मैं खरीद करके देता हूं, इस मशीन का किराया तुमको हमको महीने में इतना 1000 रुपया देना है। आपने मशीन भी खरीद करके दे दिया, वो मशीन के मालिक भी आप हैं, हर महीना आप कमा भी रहे हैं, सूद भी नहीं है, हलाल भी है, दीन से लेकर के दुनिया तक की तरक्की आपकी हो रही है। तीसरा तरीका बता रहा हूं, सूद की जरूरत नहीं है, सूद से ज्यादा आप कमाएंगे। कमाने का तरीका क्या है? किसी को पैसा कोई मांगने के लिए आया, आप उससे पूछिए कि भाई हम तुमको सामान खरीद करके दे देते हैं। सामान आप खरीदिए और उससे बेच दीजिए नफा के ऊपर। आपने नफा के ऊपर उसको बेच दिया, ये हलाल हो गया, आपकी जेब में नफा आ गया, उस गरीब का काम बन गया। दीन से लेकर के दुनिया तक अल्लाह ने आपको माला माल कर दिया। लूट करके लाएंगे और कूट करके खाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
یہ دیکھیں اپنی ملت پر قیاست وام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک کو نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخ ست تو ملت بھی گئی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ ہے بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، مسلمانوں سنبھل جاؤ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا، میں آپ کو مہمان کے لیے فارغ کر رہا ہوں، 3 وعدہ لیتا ہوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔